Right. Hello everyone, welcome to another class. And today I'm going to take up place mix from enterprise marketing. In the last class, we had taken place mix part one, and today we are going to continue with the remaining part of part one, and that's why we have given it the name part two. So, unit three, enterprise marketing. This is class number 8 from unit three, and this is place mix part two. So let's start with today's class. So dear students, these were the topics covered in the previous class, which was place mix part one, where we had talked about producer and customer, which was a direct channel, zero level. Only producer and customer, were involved. Then we have talked about producer, retailer, and customer, which is indirect one level, where three people were involved: producer, retailer, and customer. Then we have talked about producer, wholesaler, retailer, and customer, two levels, where producer is involved, wholesaler is involved, retailer and customer is involved. Fourth one was three levels, where producer, distributor, that is agent, wholesaler, retailer, and customers were involved. And then we talked about product consideration and market consideration. So don't forget to see my part one on the same class, place mix, and so that you should watch these classes, in continuation to understand both the parts thoroughly. So let's take up part two today. These are the points under discussion in part two. The first point is introduction. I'm going to talk about place mix a bit with you. And then I'm going to talk about considerations related to manufacturer and company. जिसमें involved है आपका goodwill, desire to control the channel of distribution, and financial strength. Then we are going to talk about point number 4, consideration related to government. And the fifth point, which is others, in which we are going to talk about costs, availability, and possibilities of sales promotion. So without much ado, let's start today's session. Considerations related to manufacturer or the company. So let's revise place mix once again. Certain points I have prepared for you. Now, this is what is the quality of Mavericks India solution. Whenever we make 2 points, we always give, a small revision of the previous class in the second class as well. So place mix, explain, a quick review. The place mix in entrepreneurship is about making sure your product or service is available to customers where and when they need it. It's a very, very important point. I must call it a VIP point. It's a very important point. The place mix in entrepreneurship is about making sure your product or service is available to customers. आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट, आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज, जब भी जहां भी कस्टमर चाहे उनको ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए. यही प्लेस मिक्स है, इसे प्लेस मिक्स कहा जाता है. दिस इंक्लूड्स चूजिंग द बेस्ट वेज टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट्स, whether that's online, in stores or through other methods. और इसमें इंक्लूड किया जाता है बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट्स, चाहे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, स्टोर्स में कर रहे हैं, और थ्रू अदर मेथड्स. इट इन्वॉल्व्स पिकिंग द राइट लोकेशंस फॉर योर बिजनेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजिंग योर इन्वेंट्री, आपके पास कितना स्टोरेज है, कितनी इन्वेंट्री है, कितना माल पड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव एनफ स्टॉक विद यू. एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हेल्प विद लॉजिस्टिक्स. जनरली लोग आजकल एसएपी यूज करते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, in order to access, how much stocks and inventory they have in their warehouse or distribution center,
and how much they have sent it to other locations across the country. Fourth point, you need to decide how widely you want to spread your product, whether it is just in a few places or everywhere. प्लेस मिक्स डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने लेवल तक एक्सपैंड करना चाहते, आप कहां कहां पर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते. तो बिगर द प्रेजेंस, बिगर द एरिया, the larger the area, the harder you have to, more stock you have to keep, more logistics you have to maintain. So it all depends upon the area that you are covering or the coverage of the area. Good place mix management ensures customers can easily find and buy your product, which helps your business succeed. तो बच्चों ये बहुत, मैं इसको चाहे फिफ्थ पॉइंट भी कह सकता हूं, इसे मैं फिफ्थ पॉइंट भी कह सकता हूं. गुड प्लेस मिक्स मैनेजमेंट ensures कि customers can easily find and buy your product, which helps your business to succeed. So, place mix is very, very important. So these are 5 points on place mix. Very important points. Now let's talk about this second class part 2, goodwill. Goodwill क्या role play करती है in place mix? How it helps place mix? Goodwill. Yeah, how it helps the distribution of your products and services to reach at proper places and get accepted the moment it reaches over there. जैसे ही आपका प्रोडक्ट और सर्विस वहां पहुंचता है, इंस्टेंटली इट हैज टू गेट एक्सेप्टेड. ये सब डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की गुड विल के ऊपर. First point, the manufacturer's goodwill plays a crucial role in choosing the channel of distribution. जैसी आपकी गुडविल होगी वैसा ही आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना पड़ेगा. जैसी आपकी गुडविल हो, अगर गुडविल आपकी अच्छी है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होगा, और अगर गुडविल अभी आप बना रहे हैं तो यू रिक्वायर अ बिगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. A well reputed manufacturer doesn't need to rely on middlemen and can easily establish their own branches. और जो reputed manufacturers हैं उनको कोई जरूरत नहीं है मिडलमैन की, वो अपनी कंपनी की ब्रांचेस अपने आप खोल सकते हैं wherever they want. So that is what goodwill is. मेरा नाम चलता है, मेरे नाम से प्रोडक्ट बिकता है. आप जहां भी मेरे नाम का शोरूम खोल देंगे या ब्रांच खोल देंगे, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट हैविंग कस्टमर्स इन. दैट्स व्हाट गुडविल इज. For example, a highly respected electronics brand might open its own stores to maintain direct customers relationships. Goodwill ensure trust and loyalty, reducing the needs for intermediaries. और कोई अगर बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, वो जहां मर्जी चाहे अपने स्टोर्स खोल सकता है and can build a very strong relationship with the customers. Goodwill ensures trust and loyalty, reducing the need for intermediary. अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपको किसी के प्रोत्साहन, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी भी इंटरमीडियरी. लोग अपने आप आपके नाम, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी प्राइस रेंज की वजह से आपके पास खुद आएंगे, जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है बच्चों जिसके प्रोडक्ट्स है ना, मैं खुद आंख बंद करके खरीद लेता हूं. एक कंपनी है, दो आई डू नॉट यूज इट्स नेम हियर, बट यस, मेरे सारे घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 90% उसी कंपनी, और वो बहुत ही एक हाईली रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है. हमने कभी, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू परचेज अ टीवी, एयर कंडीशनर, समटाइम्स कंप्यूटर, लैपटॉप एज वेल, तो हम उसी ब्रांड की तरफ चलते. ओके, गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Second is desire to control the channel of distribution. Let's take these three points as well. A manufacturer's wish to control the distribution channel significantly influences its selection. जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी विश होती है टू कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कैसे प्रोडक्ट को किस किस स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यही जो उनकी विश होती है कि कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो कंट्रोल करें, उसी हिसाब से वो एक्सपैंड करते हैं अपने आप। अगर ज्यादा दूर नहीं जाना, एक स्पेसिफिक एरिया में रहना है, तो इट रिक्वायर्स स्मॉलर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एक बड़ा रेंज, बड़ी एरिया, बड़ा कवरेज एरिया कवर करना है, तो दे रिक्वायर a significantly bigger channel of distribution. A manufacturer wish to control the distribution channel significantly depends upon the influences of its selection. Second point, manufacturers wanting direct consumers contact. Manufacturers क्या चाहते हैं कि भैया मिडलमैन जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, उतना प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाए। तो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करते, like those in the electronics sector often prefer company owned retail outlets. कंपनी ही बनाए, कंपनी ही भेजे, कंपनी मुनाफा। ये किस पे डिपेंड करता है, गुडविल पे, और कितना बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कंट्रोल कर। टू इंश्योर हाई सर्विस लेवल्स एट द पॉइंट ऑफ सेल्स, भाई अपना प्रोडक्ट है, कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट है, तो उसी प्रकार से सर्विसेज भी दी जाए। By controlling the channel, manufacturers can also maintain consistent branding and customer experience. जब सारा चैनल कंपनी कंट्रोल करती है या मैन्युफैक्चरर ही कंट्रोल करता है, तो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग करेगी, अच्छे से मार्केटिंग करेगी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। तो बच्चों, जब भी हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कम इंटरमीडियरीज रखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग हम कम करते हैं, तो ऑब्वियसली वी ट्राई टू डाइवर्ट द प्रॉफिट अर्न बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड इंटरमीडियरीज टू द कस्टमर्स। सो डिजायर टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सब डिपेंड करता है, बड़ा एरिया आप खुद से नहीं कर पाएंगे, यू रिक्वायर मोर इंटरमीडियरीज। छोटा एरिया यू डू नॉट रिक्वायर एनी फॉर्म ऑफ इंटरमीडियरीज, आप खुद से कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ place makes it works, or channels of distribution they work. Financial strength is very very goodwill is important, financial strength is important, and financial strength is extremely important. A company's financial strength determines its ability to create its own distribution channels. अगर कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो but obviously it will go for creating its own distribution, अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करे। Strong financial companies can establish their own channels, whereas financially weaker ones have to depend on the middle. अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो आप अपने चैनल्स बनाएंगे, और अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, तो यू हैव टू डिपेंड अपॉन द मिडल। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग, एक एग्जांपल देता हूं, तो आप अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप क्या करेंगे, you will have to depend upon the banks to take loans from them, and even they are involved in your business. Financially strong companies can invest in infrastructure and logistics to support direct distribution. Very very important, very very important. जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, warehouses, distribution centers, and logistics as लॉरीज एज, माल को
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए वी रिक्वायर ट्रक्स, वी रिक्वायर लॉजिस्टिक्स। तो वो भी सब वो क्रिएट कर सकते हैं इफ द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग। Considerations related to the government. This is the fourth point. Government regulations also impact the selection of distribution channels. For instance, the law requires that only licensed individuals can sell medicines. Hence, pharmaceutical manufacturers must ensure their products are distributed through licensed middlemen. कुछ बच्चों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें लाइसेंस होना अनिवार्य भी है, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये मस्ट भी होना चाहिए, because when you are serving medicines to people, medicines to patients, it has to undergo through certain quality controls, and only then with proper expiry dates printed on the medicines it should reach to the customers or the people or the patients. और इसमें अगर मिडल मैन भी आप ही के लेवल के स्टैंडर्ड के मिडल मैन होंगे who are licensed to do all these things, तो एक जो कंट्रोल ऑफ नॉर्म्स है ना वो फॉलो किया जाता है, रूल्स फॉलो किए जाते, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। Otherwise anybody can distribute it, or for the sake of just smaller profits, wrong medicines can reach to the patients. Hence, pharmaceutical manufacturers must ensure their products are distributed through licensed middlemen. So there you require specific license. You have to procure specific license to distribute the products of this category. This ensures compliance with legal standards and avoids potential fines or sanctions. और इससे क्या पता चलता है कि आप कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, लीगल स्टैंडर्ड से चल रहे हैं, और आप पोटेंशियल फाइन्स और सैंक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं, या you are playing safe here, and you are licensed, you are renewing your license after every span of time, और आप पर फाइन्स नहीं लग रहे, सैंक्शंस नहीं लग रहे, you are playing a fair game, and that's how इनिशियली इसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि आपको रूल्स रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है. वंस यू आर इनटू द लीगल स्टैंडर्ड्स यू विल स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे आफ्टरवर्ड्स. आर यू गेटिंग इट? जैसे आप किसी से पूछते हैं आज की तुम्हें गाड़ी चलाना मुश्किल लगता है, पर्सन इज राइडिंग कार ड्राइविंग कार फ्रॉम पास्ट 10 years, तो क्या बिल्कुल आसान लगता है. पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जिसने आज तक गाड़ी नहीं चलाई कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आसान लगता है, तो क्या नहीं, मुझे तो मुश्किल लगता है. ऐसे ही होता है जब आप कंप्लायंसेस और लीगल स्टैंडर्ड्स में एंटर नहीं होते तो आपको लगता है पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, फॉलोइंग इट, इट बिकम्स इजियर विद द पैसेज ऑफ टाइम. और इसमें ग्रोथ है ना वो अनलिमिटेड हो सकता है. कहीं भी आपको यू हैव टू कर्ब योर प्रॉफिट लेवल्स, बट आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है. अदर्स में आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. आपके मैन्युफैक्चरर्स शुड ऑप्ट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव and beneficial in other aspects. For instance, choosing a less costly channel can increase profit margins. Additionally, a cost-effective channel can provide more competitive pricing for consumers. तो हमेशा cost effective channels यूज करने चाहिए जिसमें जो profit sharing है वो कम से कम हो, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बच रहे हैं वो या तो बिजनेस में लग सके, और इट शुड बी शेयर्ड विद योर consumers at large. So your channels needs to be cost effective. Availability. Sometimes the preferred distribution channel might not be available, necessitating the section of an alternative channel. कई बार जो distribution channel को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके स्पेसिफिक एरिया में उपलब्ध नहीं होता है, तो you go for an alternative channel. This is also an option with placements. मैन्युफैक्चरर्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड हैव बैकअप प्लान्स. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि बच्चों अगर आप बिजनेस में ना रिजिड रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा ना. दैट इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ द बिजनेस. अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेन फ्लेक्सिबल.
और आपने देखा जहां जहां भी बिजनेस पीपल दे हैव बिकम रिजिड, दे हैव बिकम अनबेंडिंग, वहां पे दे हैव स्टार्टेड बियरिंग लॉसेस. सो मैन्युफैक्चरर्स अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करें तो आपको ना फ्लेक्सिबल तो रहना ही पड़ेगा, एंड यू नीड टू हैव बैकअप प्लान्स एज. नहीं तो आपका माल बन जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट पड़ा रह जाएगा और कोई खरीदार नहीं हो, कोई खरीदार तक उसको पहुंचाना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी इश्यूज कैन अराइज फ्रॉम मार्केट कंडीशंस और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस. और कई बार मार्केट में चेंजेस आ जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, आपसे बेटर क्वालिटी कोई दूसरी कंपनी इंट्रोड्यूस करती है, तो ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं. कई बार उस एरियाज में लॉजिस्टिक्स अवेलेबल नहीं होती, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जिसे हम कॉन्टिजेंसी प्लान भी कह सकते हैं. इफ नॉट दिस देन वो, अगर मेरा माल इस प्रकार से नहीं पहुंच पाएगा तो क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव चैनल है थ्रू विच आई कैन मेक माई गुड्स अवेलेबल. अब बच्चों देखिए, इंटरनेट हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम इफ यू आर वर्किंग ऑनलाइन इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री. आपको क्या लगता है कि इफ यू टॉक अबाउट टेरेन्स, इफ यू टॉक अबाउट हिली एरियाज, वहां पर यू नो मोबाइल को एम कॉमर्स, ई कॉमर्स तो है, ई कॉमर्स इज अवेलेबल, बट अगर आपने डिलीवरी करनी है वहां प्रोडक्ट्स की और गुड्स की, इट इज बिट चैलेंजिंग इवन टुडे. सो यू नीड टू हैव एन ऑल्टरनेटिव चैनल, क्योंकि मेरा अगर माल बन जाता है, मैं माल बना देता हूं और मेरे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, तो हाउ आई एम गोइंग टू मेक माई फिनिश प्रोडक्ट रीच टू द मार्केट. सो अवेलेबिलिटी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लिए. पॉसिबिलिटीज ऑफ सेल्स, channels with higher sales potentials should be prioritized. जो प्रोडक्ट्स या जो चैनल्स आपके ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं विच आर हाईली इन डिमांड, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. चैनल्स दैट रीच अ लार्जर ऑडियंस हैव हायर ट्रैफिक कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट सेल्स. और ऐसे चैनल्स जो लार्जर ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. हियर इट इज, हैव हायर ट्रैफिक and can significantly boost sales. तो अगर आपकी रीच उस जगह पे है जहां पे आपकी डिमांड ज्यादा है, कस्टमर कंट्रोल ज्यादा है, तो वहां पर आपकी जो सेल्स है वो श्योरली बूस्ट हो. Entrepreneur face various challenges in bringing a great idea or invention to a finished product. This you know, including patents, financing, marketing, trademarks, product branding, manufacture, and distribution. Overcoming these challenges is essential for successful product launches. और इन challenges को overcome करना बहुत important है कि आप एक successful product market में launch कर सकें. जिसमें क्या involved है आपका, अगर कोई patents हैं, नई invention है, उसे finished product में convert करना is not difficult, but yes, it's a bit challenging. और फिर उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए डिफरेंट ट्रेडमार्क्स चाहिए होते हैं आपको, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दीज थिंग्स टेक्स टाइम. तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को मेजरली प्रोडक्ट लाइन में लाइन ऑफ योर प्रोडक्ट्स, उन्हीं प्रोडक्ट्स को मेजर प्रायोरिटी दे जो बहुत ज्यादा बिकते हैं, जिनकी रीच भी एक स्पेसिफिक एरिया तक है और की डिमांड भी ज्यादा. आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लीजिए, आप अमूल की बात कर लीजिए, आप पार्ले की बात कर लीजिए, आप ब्रिटानिया की बात कर लीजिए, किसी भी ए टू जी वर्ल्ड बिगेस्ट ब्रांड की आप बात कर लीजिए, आपको उनकी प्रोडक्ट लाइन में सिर्फ 4-5 ऐसे प्रोडक्ट्स बिकेंगे जो हॉट सेलिंग, और उसमें से भी 5 में से प्रायोरिटाइज एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके नाम पे कंपनी चलती. फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट आई टॉक अबाउट आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, दैट इज मिल्क. बाकी उनका बटर भी है, उनका बटर भी है, उनका चीज भी है, उनके मिल्क रिलेटेड और भी आइटम्स हैं, उनकी आइसक्रीम्स भी हैं. फ्यू डेज अगो आई सॉ देयर ब्रेड्स एज वेल. बट जो प्रायोरिटी है, जो कैश क्रॉप्स है उनकी, वो मेजर 2 प्रोडक्ट्स है. वन इज मिल्क एंड वन इज बटर, एंड इट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सो पॉसिबिलिटीज ऑफ सेल्स तभी है. आप और प्रोडक्ट्स को भी लेके चलिए साथ साथ, बट जो मेजर प्रोडक्ट्स है यू हैव टू फोकस ऑन.
So channels that reach a larger audience have higher traffic can significantly boost sales. फिर आपको promotion करना पड़ेगा. Promotion encompasses all activities aimed at making the product or services known to consumers and traders. जो दिखता है वो बिकता है. अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट करेंगे, लोगों तक उसकी रीच बढ़ाएंगे, लोगों के लिए उसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट आपके ट्रेडर्स को उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी, कंज्यूमर्स को जानकारी होगी, एंड देन दे विल स्टार्ट आस्किंग. दिस इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, प्रेस रिपोर्ट्स, incentives, commissions, awards, consumer schemes, direct marketing, contests and prices. तो आपको जिन वेरियस एक्टिविटीज पर फोकस करना है, दे आर लाइक दिस. जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, पहले के प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया, तो विद वर्ड ऑफ माउथ इट विल स्टार्ट रीचिंग टू पीपल. प्रेस रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर में आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा हो, अच्छी बातें लिखी. इंसेंटिव्स मिलने चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को इन ऑर्डर टू प्रमोट योर प्रोडक्ट सेपरेटली फ्रॉम सेलिंग. बेचना तो है ही, उसे प्रमोट भी कर. कमीशंस मिलने चाहिए. दोज हु आर हाईएस्ट सेलिंग एंड अवार्ड्स मिलने चाहिए. एंड कंज्यूमर स्कीम्स, डायरेक्ट मार्केटिंग होनी चाहिए, कॉन्टेस्ट होने चाहिए, प्राइसेस मिलने चाहिए. तो ऐसे आप प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स. Effective promotion strategies can significantly increase brand visibility and sales. Effective promotion strategies. Any strategy nahi. Effective promotion. Effective. Specific. Clear. To the point. Can significantly increase brand visibility and sales. This will be discussed in detail in the promotion strategy. जब हम promotion strategy की बात करेंगे, तो हम उसमें इन strategies को भी discuss करेंगे. So, bacho, with this, we have come to the end of today's session, where we have taken introduction to placements, we have revised placements, we have talked about the goodwill of the product, desire to control the channel of distribution, financial strength of the company, under considerations related to manufacturer and company. Then we have talked about considerations related to, the norms of the government that you have to follow in order to expand the channel of distribution. Otherwise, you cannot do it. Then we have talked about costs, availability, and possibilities of sales promotion. So, bacho, with this, we have come to the end of part 2 of placements. I request you all to watch these two parts together, part 1 and part 2. And do not forget to take our rigorous practice section. बहुत सारे बच्चे मुझे इस बारे में लिख रहे हैं that sir, it is helping us a lot. Where I have given you the synopsis of part 2, vocabulary from the session in English as well as Hindi, 10 short questions along with answers. These are the questions and these are the answers. Top 10 objective type questions along with answers. Answers to all the objective type questions. True and false statements from the session. These are the answers. Fill in the blanks and these are the answers. Thank you very much, bacho. Until meet next time. Bye-bye for now. God bless you all. Take care. And in next week, we are going to take up a class of for class 11. And after that, we are going to continue with promotion strategy of class 12. So until meet next time. Bye-bye for now. God bless you all. Take care.